Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने वरिष्ठ विश्लेषक जयंतु दास। जयंतु, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। धन्यवाद मनोज। Here's the headlines. Well, Union Cabinet approves assistance of 3,500 crore rupees for sugarcane farmers, gives nod to revised cost estimate for Northeastern Region Power System Improvement Project. Benchmark domestic stocks continue their lifetime record-setting rally. Sensex closes above 46,650 points. Nifty settles above 13,650 level. And global equity indices rise to new highs amid prospects of effective coronavirus vaccines and more U.S. fiscal stimulus. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को दी मंजूरी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित अनुमान लागत को भी स्वीकृति मिली। घरेलू शेयर बाजार के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 46,650 से ऊपर उठकर हुआ बंद। निफ्टी 13,650 के स्तर से ऊपर पहुंचा और कोरोना वायरस का टीका प्रभावी होने की उम्मीद तथा अमेरिका में वित्तीय प्रोत्साहन की संभावना से दुनिया भर के शेयर बाजारों में लिवाली तेज, नई ऊंचाई पर पहुंच रहे सूचकांक। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved a revised cost estimate of Northeastern Region Power System Improvement Project for 6 states for strengthening of the intra-state transmission and distribution systems. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said main objective of the project is government's commitment for the total economic development of Northeastern region and to strengthen the intra-state transmission and distribution infrastructure in the region. He said implementation of the scheme will create a reliable power grid and improve northeastern states' connectivity to the upcoming load centers and thus extend the benefits of grid-connected power to all categories of consumers in the northeastern region. Mr. Javadekar said CCEA has also approved assistance of 3,500 crore rupees for sugarcane farmers. He said the cabinet has taken the decision to help farmers directly by depositing money of subsidy into their accounts. The subsidy will be given on 60 lakh tons of sugar exports at the rate of 6,000 rupees per ton. It will benefit 5 crore farmers and 5 lakh workers. The Cabinet also approved the auction of spectrum in 700 MHz, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 MHz frequency bands for validity period of 20 years. The Communication and IT Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad, said that a total of 2,251.25 MHz is being offered with a total valuation of 3,92,332 crore rupees at reserve price. The Cabinet has given its approval for Memorandum of Understanding between Central Electricity Regulatory Commission, CERC, India and Federal Energy Regulatory Commission, that is FERC, United States of America, for exchange of information and experiences in areas of mutual interest to both the electricity sectors.
हम जैन तो आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे इस खबर पर और दो बिंदुओं पर कह लें कि आपकी टिप्पणी समझना चाहेंगे। एक तो गन्ना किसानों के लिए जो 3,500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है, इससे प्रत्यक्ष रूप से कैसे किसानों को लाभ होगा, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, उसके आयाम क्या हैं और इसका उपयोग किस रूप में हो सकेगा, इन दोनों बिंदुओं पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज का जो भी निर्णय रहा कैबिनेट कमेटी की तरफ से, वो उसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कुछ डिसीजंस जो थोड़ा बहुत पेंडिंग था उसको ऊपर एक्शन देना तुरंत, क्योंकि इस वक्त कोरोना का साथ जो दौर चल रहा है, ये लड़ाई जो चल रहा है, बहुत जरूरी है कि आर्थिक रूप से सरकार का खास करके नीतिगत रूप से जो भी कदम उन लोगों को उठा सकते हैं, जहां पे मामला सुधार हो, और जहां पे सुधार हो रहा है मामला, उस मामला में सुधार का जो रफ्तार है उसमें तेजी हो। ये दो चीजों को ऊपर ध्यान रखते हुए सरकार का ये निर्णय मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। खास करके गन्ने किसानों के लिए जो निर्णय लिया गया है, देखिए इनका ड्यूज काफी सालों से चल रहा है और ये पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, जहाँ पे गन्ने को किसानों को ड्यू वक्त में मिल नहीं रहा है, जिस वजह से उन लोग को भी, किसान में भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है उन लोग को। और इस वक्त सबको पता है कि स्पेंडिंग का वृद्धि कराना गवर्नमेंट का इस वक्त एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। और ये जो डायरेक्ट अकाउंट में जो पैसा उनको दिए जाएंगे, पहले ये होता था कि ये सब्सिडी रूट किया जाता था कंपनीज का द्वारा, जहाँ पे कंपनीज को भी थोड़ा बहुत अलग से पैसा मिलते थे, अलग से सब्सिडीज मिलते थे। तो अभी खरीदने के लिए गन्ने का, उसमें जो डायरेक्ट सब्सिडी गन्ने को जो भी किसानों को मिलेंगे, उसमें मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और इस फर्क के दौरान थोड़ा बहुत स्पेंडिंग का भी वृद्धि होना चाहिए, और जिसमें अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं डिमांड पुश इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको उपाय भी शायद हम लोग देख सकते हैं, जिस वजह से 3,000 करोड़ के करीब जो भी राहत है सरकार की तरफ से, ये काफी फायदेमंद रहेगा ऑन द टारगेटेड सेक्टर। ये जो विभिन्न स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, मंजूरी दे दी गई है, ये 700 मेगाहर्ट्ज के हैं, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300, यानी अलग अलग बैंड के जो ये स्पेक्ट्रम है, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये किस रूप में आने वाले दिनों में इनका प्रभाव आम जनजीवन पर हम देख सकेंगे? देखिए, स्पेक्ट्रम का नीलामी का साथ साथ जो भी सरकार का प्रयास रहा है पिछले 10-15 साल से, उसमें मूल तौर से तो ये है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, खास करके टेलीकॉम क्षेत्र में और भी तरह तरह का क्षेत्र जहाँ पे स्पेक्ट्रम का यूजेज सही रूप से होता है, वहाँ पे एक डिमांड का तौर से काफी ज्यादा वृद्धि होता है, काफी ज्यादा इस डिमांड में वृद्धि भी हुए हुए। अब सवाल ये था कि काफी कंपनियों को भी एक अलग से रिक्वेस्ट थे, एक अलग से कंसर्न थे, आप कह सकते हैं, जहाँ पे जितना स्पेक्ट्रम का जरूरत था सरकार की तरफ से, उतना स्पेक्ट्रम शायद मुहैया नहीं कराया जा रहा था। और इस स्पेक्ट्रम के ऊपर जो निर्णय लिया गया है, मैं मानता हूं कि एक्स्ट्रा बैंडविड्थ जो है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जहां पर हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर बात करते हैं। और इसके अलावा उसका साथ जो पैसा मिलेंगे, हम सबको पता है कि इस वक्त सरकार के पास पैसा का बहुत कमी है, क्योंकि जहां पे सकल घरेलू उत्पाद के करीबन नेगेटिव ग्रोथ रेट में इस वक्त चल रहे हैं, तो उसमें ये जो मच रिक्वायर्ड मनी या मच रिक्वायर्ड फंड्स जो गवर्नमेंट फंड्स है, उसको भी थोड़ा बहुत वृद्धि होने को उम्मीद है स्पेक्ट्रम का द्वारा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार लिवाली चल रही है और सूचकांक नई ऊंचाई पर रोज पहुंच रहे हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज रही और रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रमुख सूचकांक पहुंच गए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 403 अंक यानी 0.87% का उछाल लेकर नए उच्चतम स्तर 46,666 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 115 अंक यानी 0.85% की बढ़त लेकर 13,683 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.87% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.88% की वृद्धि हुई। Benchmark domestic stocks today continued their lifetime record-setting rally as they gained around 0.9% amid positive global cues. The BSE Sensex closed above 46,650 and the Nifty settled above 13,650.
Sensex surged 403 points or 0.87% to finish at 46,666, and the NSE Nifty 50 index climbed 115 points or 0.85% to settle at 13,683. The broader market at BSE also gained as equal as the Sensex. BSE Mid-Cap Index rose 0.87%, while the BSE Small Cap Index appreciated 0.88%. In the Sensex pack, shares of 21 companies climbed, while 9 logged losses. HDFC was the top gainer as it climbed 3.1%, followed by ONGC, which gained 2.7%. Bharti Airtel climbed 2.4%, and Asian Paints gained 2.2%. Titan rose 2.1%, and TCS added 1.9%. On the other side, ICICI declined 1.1%, while IndusInd Bank and NTPC both fell 0.9%. Ultratech Cement slipped 0.8%. In sectoral indices, all 19 sectors climbed. The realty sector was the top gainer as it surged more than 5%, followed by consumer durables, which climbed 2.4%. Telecom and metal, both sectors gained 1.8%, while energy and capital goods both rose 1.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,859 companies gained, 1,165 declined, and 174 remained unchanged. 325 companies rose to their 52-week high, while 46 companies fell to their 52-week low. Well, Jayanto, every day brings a new high in Sensex, and we keep thinking it's a bubble waiting to burst, but the show goes on even stronger than the previous day, and we thought the economy was trailing. What do you have to say on that? Well, there is no doubt that we need to have some breather out here, but unfortunately no one knows the reason to the extent at which this rally will keep on happening, because technically, I guess also it's an impossibility to have this non-stop run of the Sensex, you know, and even by Sensex, when the Nifty, if you see, from 11,000 to 13,500 it rose without, you know, almost a breather. Now, typically our advice to most retail investors would be at this point of time is to be extremely cautious at these levels. Whatever buying you're doing, obviously you're getting an immediate gain within a few hours of whatever you're buying or even a couple of days on. But that doesn't mean it's a situation which is keep on going to happening. There is a correction expected. Now, if we all knew when the correction is going to happen, I guess we would have made tons of money out of that. So it's an unpredictable scenario in that sense. But there are obviously a few factors which has led to this almost euphoric rise. Coupled by two major farms globally. One is the establishment of the presidential election results in the U.S. More firmly than ever before, whereby now almost there is no iota of doubt that the elections are settled and the elections have been accepted in terms of the results. And secondly, if you see the initiation of vaccines in countries like UK, in countries like USA, very initial days, I think it's hardly 24 to 48 hours, a bit more maybe, where the vaccines have been started to coming in. But the deaths are also there because let's not forget President-elect Joe Biden's speech yesterday to the nation where he said it's a very dark Christmas and a New Year we are looking forward to with over 300,000 deaths. You know, so that's a very sad part of the present state of circumstances. But having said that, obviously the economy is taking a brunt. But we also should understand, Lalima, specifically in case of India, in the second quarter, although we have a minus 7% growth, but the bounce back of the economy has been much more faster than what was expected of it. And even the most pessimistic of economic pundits have also sat and watched to the extent at which the jump in the economic recovery which has happened. It's not to say that we are in a perfectly green zone with a lot of happy stars floating around. Certainly not. But having said that, one must also understand that it's been a long run war. We have a third wave through which India at this point of time is going through. There is the farmers' agitation, which is taking some toll on the Indian industry, specifically in the northern region. They are taking a toll on that also. Estimates as per the chambers, they say it's around 3,000 crores per day. So these facts would remain in the horizon to see or to impinge upon.
But despite that, the Sensex has been doing terribly well. So I guess that's where, what all market irrational exuberance is all about. It's completely at play out over here. I think one factor, Jayanta, which we do not talk much about is the fact that now we have more than 95% recovery of COVID patients. So that's what I said. The COVID war, while it has not ended, it's certainly there are a lot of positives happening in the COVID war at this moment of time. And I think those are the positive factors, if not the market, at least for the whole nation per se, it's an important factor to look forward to. Delhi, which is, say, I think among the top 3 COVID-affected zones, has also seen a fair amount of recovery with approximately around 1,500 cases per day now being recorded from a peak of 8,500 cases even a couple of weeks ago. Right. So that's not to say that we have won the war. That's not also to say that the vaccines are going to completely change our lives to the pre-COVID days. Certainly not. But yes, a very close watch, and the markets, as I said, a correction is due. It may not happen, if you ask me personally, that deep correction may not happen till Joe Biden takes over and, starts his presidency. We are going to wait till that time because there are a lot of good news and happy news in the horizon which is going to keep on coming, which is going to keep on having the stock market euphoric. But for our retail investors, it's well advised for them to be extremely cautious at these levels. There are some good value picks, even at these levels always. There are some picks which you can obviously book profits in, but do be extremely cautious. जयंत, तो यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो रियल्टी सेक्टर है वो सबसे अधिक वृद्धि वाला सेक्टर रहा है और 5% से अधिक की बढ़त इसमें देखने को मिली है। कोई खास कारण रहा रियल्टी सेक्टर में आज की तेजी के पीछे? देखिए, रियल्टी में खास करके मैं मानता हूं कि जिस हद तक कोविड का वजह से रियल्टी सेक्टर को लोगों को सोचा था एक नुकसान पहुंचेंगे, द सेक्टर हैज बीन क्वाइट रेजिलिएंट इनफ, एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए, डिस्पाइट ऑल देयर ट्रबल्स, इट हैज मैनेज्ड टू कीप ऑन बीइंग फ्लोटिंग। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेंट्री काफी ज्यादा है, प्राइस करीबन 15 से 20% कम है अगर पिछले साल का तुलना हम करें रियल्टी सेक्टर में, लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज वन सेक्टर विच हैज नॉट टेकन द फुल ब्रंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट कोविड हैज डन टू से अदर सेक्टर्स लाइक ऑटो एंड ऑल। तो उस हिसाब से अच्छा वैल्यू बाइंग रियल्टी सेक्टर में है। और जिस तरह से स्टॉक मार्केट में तेजी होता है, लोग जब स्टॉक मार्केट से अगर आप देखें, आज से नहीं पिछले 2 दशकों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, खास करके इंडियन रियल्टी सेक्टर में, जब स्टॉक मार्केट पे बहुत तेजी होते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट्स वहां पे बुक करे, तो वो पैसा कहीं ना कहीं जाके रियल्टी क्षेत्र में भी जाके पहुंचता है। और मैं मानता हूं कि इसमें इट्स नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन, एक सटल कोरिलेशन बेशक है स्टॉक मार्केट से रियल्टी सेक्टर का, और जिस वजह से हम देख रहे हैं आज का जो 5% जो वृद्धि हुआ है, उसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंक्रीजेस बेशक हुआ है, जिस वजह से ओवरऑल रियल्टी सेंसेक्स में वृद्धि हम देखे। लेकिन मैं पिछले 2-3-4 हफ्ते का दौरान हमेशा इस प्रोग्राम में भी कहा कि रियल्टी सेक्टर हैज बीन टू दैट एक्सटेंट समथिंग टू वॉच एंड लुक आउट फॉर। उसमें एटलीस्ट 8 से 10 स्टॉक्स ऐसे हैं काफी अच्छा परफॉर्मिंग करेगा, और मैं मानता हूं जब हम वापस आएंगे एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट में, तो इस क्षेत्र में खास करके कुछ अच्छे स्टॉक्स में हम अच्छे प्रदर्शन देख सकते हैं। And Jayanta, we know that the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, has been conducting consultations. Third round of consultations has happened pre-budget, related to what should be coming in the budget. But she has hinted that this investment process will gain momentum, and the forthcoming budget will be a vibrant one that will ensure economy's sustainable growth. Has that added to the cheer? Well, see, disinvestment is obviously a continuous work in motion. It's not something which happens only when markets are springing up, because the government needs money, the government wants to get out of some of the sectors, and rightly so they should. And I guess it's a continuous process, and specifically if you see when the financial year is supposed to close, the government tries to do some quick short disinvestments at good rates to balance whatever losses they have in the budget in terms of bringing in those extra revenue. So I guess the disinvestment is there to stay, and the government would like to come out of all those sectors which they believe there is no much value add for the government to be around. In addition to that, I guess what also happens is when your Sensex are at these levels, these euphoric levels, I guess it also creates a very ambient environment for a public sector company to come off the blocks and get sold. So I guess that's the another trigger which is going to remain, so long as the market euphoria keeps on happening.
जैन, तो यदि हम देश की अर्थव्यवस्था को देखें तो पहले यानी कह लें कोविड के मध्य चरण में कहा जा रहा था कि अर्थव्यवस्था का विकास डब्ल्यू शेप में रह सकता है या वी शेप में रह सकता है। अब लगभग दिख रहा है कि हम वी शेप में ही ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में कौन से क्षेत्र उभरते हुए आपको दिख रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के दौरान? आपने के शेप के बारे में बताया नहीं, बाकी के शेप के बारे में भी बात किया जा रहा है। अगर जी श्रोताओं के लिए पहले वी शेप को ही स्पष्ट कर दें, वी और डब्ल्यू शेप का अंतर भी बता दें। जी, तो इसमें पूरा इकोनॉमिक्स का क्लास हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त नहीं, मैं बताना चाहूंगा, बेशक बताएंगे, क्यों ना बताएं। देखिए, सवाल ये है कि रिकवरी का अगर हम बात करें और रिकवरी का दौरान जो स्थिति बनता है जहां पे अमीर लोग ज्यादा अमीर हो रहे हैं या गरीब लोग ज्यादा गरीब हो रहे हैं, वो भी एक सिनेरियो होता है। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जहां पे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जब होता है तो उसमें लगातार आपका एक बहुत शार्प गिरावट आता है और साथ में उछाल भी आ जाता है रातों रात। जी, तो उम्मीद किया जा रहा है कि जहां पे हम -15-17% तक एक क्वार्टर में हम लोग नेगेटिव ग्रोथ देखे हैं, तो वहां पे 2-4-5% शायद अगले 2 तिमाही के अंदर उस तरह का ग्रोथ भी एकदम से हम देख सकते हैं। और इसी का उम्मीद में मैं मानता हूं कि इस वक्त देश पूरा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और सरकार का भी पूरी तरह से नीतिगत रूप से प्रयास रहा है। आइए आगे बढ़ें, नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 5 पैसे मजबूत हुआ, 73 रुपए 59 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला इंडेक्स 0.27% कमजोर होकर 90.23 पर आ गया। जैन, तो हम रुपए की स्थिति पर भी आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे और दूसरी ओर डॉलर है, डॉलर भी 2.5 वर्षों के कह लें कि कमजोर स्तर पर आ गया है। ये दोनों क्या दर्शा रहे? देखिए, इस वक्त मैं मानता हूं हालांकि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा से लेवल्स में है और रुपया का जो लेवल है वो भी मेंटेन होना चाहिए। थोड़ा बहुत आज ज्यादा गिरावट हुआ है रुपये में, तो डॉलर का भी स्ट्रेंथन होने का सीन काफी अच्छा है। खास करके कच्चे तेलों की कीमतों में बहुत सारे वृद्धि का जो हम उम्मीद पहले नहीं कर रहे थे, धीरे से लेकिन वृद्धि का एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। तो ऐसा स्थिति में मैं मानता हूं कि इमीडिएट कोई खतरा तो है नहीं इंडियन रुपये का लेवल में, लेकिन बेशक एक थोड़ा बहुत करीबन 73.8 से लेके 75.2 तक एक लेवल तक रुपये अगर मेंटेन भी होता है अगले 6 महीने का दौरान, तो इंडिया के लिए काफी स्थिति अच्छा रहेगा। And Jayant, there is a deluge of foreign fund inflow in India's equity markets, and we know that RBI's reserves are swelling. In that light, do you think it's all right for the rupee to remain roughly around 73 rupees 59 paise as it comes today, and not and preventing rupee from appreciating much? See, as I said, despite the deluge and there is a oil pressure, an upward pressure on oil prices. I guess if the rupee maintains the balance of these levels, and because we are also talking of a fast and quick recovery, Manoj was talking of a V-shaped recovery a while ago. Yeah. I think it's important for the rupee to, be at these levels rather than appreciating overnight or even depreciating overnight. So I think it will be good for that. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। कोरोना वायरस टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने और इसके प्रभावी निकलने की उम्मीद तथा अमेरिका में वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की संभावनाओं तथा डॉलर 2.5 वर्षों से अधिक के न्यूनतम स्तर पर आने का शेयर बाजारों पर दुनिया भर में अनुकूल असर दिखा है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हिंग सेंग सूचकांक 1% लाभ में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% बढ़कर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% की वृद्धि हुई। उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.3% लाभ के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में आज कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और ये लगभग फ्लैट स्टोन पर बना रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक अच्छी खासी लिवाली बनी हुई थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.5% ऊपर चल रहा था। लंदन का FTSE 100 0.9% बढ़त के साथ चल रहा था, जबकि फ्रांस के CAC 40 में 0.5% की वृद्धि दिख रही थी। Well, the Asian markets seem to be on a roll. Let's take a look at the U.S. markets now. The 3 major U.S. stocks rose yesterday as progress toward a massive government spending bill and COVID-19 relief measures boosted investor sentiment. On the other hand, investors awaited news
new economic cues from the Federal Reserve's final meeting of the year. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.1%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both surged 1.3%. हम जैन तो आपसे यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था है और विभिन्न देशों में जो स्थितियां हैं उन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और जो कोविड आपदा है उससे निकलता हुआ किस रूप में वहां का कारोबार, वहां की अर्थव्यवस्था ऊपर उठती दिख रही है आपको? देखिए, इस वक्त निर्भर करेगा किस हद तक वैक्सीन वहां पे अपना कमाल दिखा पाते हैं। मैं अगर मानूं कि देखिए रातों रात बेशक लोगों को थोड़ा साइकोलॉजिकली भी फर्क पड़ेगा तो उनका वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन का असर जो है वो करीबन 3 से 6 महीना लगेगा समझने के लिए कि वैक्सीन का प्रभाव वाकई एक पॉजिटिव रूप से और कम से कम 70, 80, 85, 90% लोगों को अगर फर्क पड़ रहा है वैक्सीन से, तभी एक उम्मीद बढ़ेंगे और तभी हम शायद एक जिसको हम कहते हैं स्टेबल रिकवरी, एक उछाल हमेशा बेशक चलते रहता है और जैसे मैंने कहा छोटा छोटा माइलस्टोन जब ग्लोबली आप कवर हो रहे तो उसमें एक अलग तो उम्मीद बढ़ते हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी समझना है। अब जैसे बिल गेट्स ने 2 दिन पहले कहा कि उन्होंने जनवरी से लेकर जून का जो समय है कैलेंडर ईयर 2021 का, वो मानते हैं कि कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव उस वक्त होंगे। तो ये सारे खबरें उनको भी बेशक स्टडी की है, उनका टीम है काफी बड़ा समझने के लिए और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन काफी हद तक हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा पैसा लगाया, रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उनको खबर भी मैं मानता हूं अगर सम्मान के साथ उस खबर को हम समझने का कोशिश करें तो खतरा कहीं गया नहीं है, खतरा भी मौजूद है। अब ये वैक्सीन का जो लड़ाई है, वैक्सीन किस हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, रिकवरी किस हद तक स्टेबल हो पाएंगे। ये जरूर है कि छोटे छोटे खबरों के साथ हम लोग एक उछाल बेशक मार्केट में देख सकते हैं और ये काफी वेलकमिंग होगा मार्केट के लिए इस वक्त। एक और जो अमेरिका में व्यापक कह लीजिए कि मैसिव स्पेंडिंग की जाएगी, तो वहां पर जो व्यापक पैमाने पर खर्च होगा उसे किन अर्थों में देख रहे हैं कि किस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और उसका असर अपने यहां भी दिखेगा? देखिए, थोड़ी देर पहले जो मैंने टिप्पणी कहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब अपना ओथ लेंगे और ऑफिस में आएंगे, ओवल ऑफिस में, तो लोगों का ये बेशक उम्मीद रहेगा कि अब शायद कुछ पैकेज अलग से घोषणा करें। थोड़ा सा समझने का हमें ये कोशिश करना पड़ेगा कि देखिए ये पैकेज पिछले 3-4 महीने के दौरान आ नहीं पाया क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का जो बहस है उस बहस में कहीं न कहीं सहमति नहीं हो पाए और वो भी थोड़ा बहुत जारी रहेंगे अनलेस जो बाइडेन साहब अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा कोई पैकेज घोषणा करते हैं। तो इसी उम्मीद में मैं मानता हूं कि यूएस इकोनॉमी खास करके इस उम्मीद में टिका पड़ा है कि अगले 4 हफ्ते के अंदर जब उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी पूरा हो जाएंगे तब शायद एक प्रॉपर पैकेज अमेरिकन लोगों को उम्मीद शायद वो लोग अच्छे से देख सकते हैं रियलिटी के तौर से और उस वजह से शायद मार्केट में दोबारा एक तेजी आएंगे। नॉट स्टॉक मार्केट, I'm talking about markets, I'm talking of actually growth markets in the manufacturing sector, in the services sector, और नौकरी का तौर से भी अलग से ग्रोथ आएगा। ये भी मैं कहना चाहूंगा साथ में CMI के भी कुछ रिपोर्ट आया था जहां पे उन्होंने करीबन 30 लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ शायद जॉब लॉसेस के बारे में भी बात की है। वो फिगर्स भी हमें समझना है कि वाकई अगर हो रहा है तो किस किस क्षेत्र में हो रहा है और नीतिगत रूप से हम लोग को कोशिश करना है इस नौकरी का जो नुकसान होना या नौकरी खत्म होने का जो एक सिलसिला जारी है उसको किस तरह से रोका जाए और वापस इकोनॉमी को सही पटरी में वापस लेके आ सकें। जी। Well, friends, let's take a look at the oil now. While oil prices today traded in a narrow range on a rise in U.S. inventories and concerns about fuel demand amid lockdowns in some parts of Europe to counter the coronavirus pandemic. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $50.80 per barrel, while WTI crude prices were around $47.70 per barrel. आइए चलें कार्यक्रम के अंतिम चरण में सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी और कह लें खरीदारों की ओर से मांग निकलने से सोने का मूल्य 371 रुपए बढ़कर 49,814 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 1,947 रुपए की छलांग लगाकर 66,800 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्य में तेजी देखने को मिली और सोने का मूल्य बढ़कर $1,867.80 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी भी $25.40 के औंस पर
पहुंच गए, प्रति औंस के स्तर पर पहुंची। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जय तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। And friends, before we close, now a reminder of the headlines. Union Cabinet approves assistance of 3,500 crore rupees for sugarcane farmers, gives nod to revised cost estimate for Northeastern Region Power System Improvement Project. Benchmark domestic stocks continue their lifetime record-setting rally. Sensex closes above 46,650 points. Nifty settles above 13,650 level. And global equity indices rise to new highs amid prospects of effective coronavirus vaccine and more U.S. fiscal stimulus. And on that note, it's time for me, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak to bid adieu. Namaskar. Market Buzz.